Good afternoon, everyone. How are you all? My name is Megha Alawa. I am your English teacher. Today we are going to start new chapter, chapter 5, The Praying Hands. In your English syllabus, chapter 5 is, the name is The Praying Hands, means प्रार्थना करते हुए हाथ. Okay. So first of all, we will check objectives. In this chapter, we will read a story of brotherly love and sacrifice. ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, द प्रेइंग हैंड्स, ये रियल स्टोरी है. दो भाइयों की प्यार, एक दूसरे के लिए जो प्यार है उनमें, और उन्होंने जो ड्रीम्स को, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी है. ओके, उसके बारे में है ये स्टोरी. इसमें हम पोर्टमेंट्यू वर्ड्स के बारे में रीड करेंगे. पोर्टमेंट्यू वर्ड्स क्या होते हैं? जब टू वर्ड्स को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड बनाया जाता है. ओके. थर्ड, लर्न टू ऐड द सफिक्स ed एंड ing टू वर्ड्स एंडिंग इन l. ऐसे वर्ड्स जो जिनका एंड जो है वो l से होता है, मीन्स लास्ट लेटर जो है वो l होता है. ऐसे वर्ड्स में ed एंड ing सफिक्स हम ऐड करेंगे, इनका यूज़ हम देखेंगे. लर्न अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो ग्रामेटिकल पार्ट है ये हम देखेंगे. लर्न टू फॉर्म एंड यूज सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस. सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, सीखेंगे हम. लिसन टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रानी लक्ष्मीबाईज लाइफ एंड पुट सेंटेंसेस इन ऑर्डर. आपको 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आगे चैप्टर में आप देखेंगे. रानी लक्ष्मीबाई की लाइफ के ऊपर है, आपको उन्हें अरेंज करना रहेगा. लर्न टू रिक्वेस्ट एक्शन फॉर अ नोबल कॉज. लर्न टू प्रोनाउंस वर्ड्स विथ शॉर्ट ओ साउंड. ओ साउंड कुछ वर्ड्स है जहाँ पे ओ का साउंड किस तरह से होता है ये हम देखेंगे. प्रैक्टिस राइटिंग अ बायोग्राफी. बायोग्राफी कैसे लिखी जाती है उसकी प्रैक्टिस करेंगे. ओके. वार्म अप एक्सरसाइज. रीड द क्लूज एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल ऑन आर्ट. आर्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको एक क्रॉसवर्ड पजल दी गई है. आपको यहाँ पे क्लूज दिए गए हैं. एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब है राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, एंड डाउन का मतलब अप से डाउन जो है आपको फील करना है. ओके. तो यहाँ कुछ क्लूज दिए गए हैं, आपको ये क्रॉसवर्ड पजल करनी है. The Praying Hands, Art and Creativity. In the 15th century, a goldsmith named Albrecht Dürer the Elder lived in a German town. Two of Albrecht Dürer's children, Albrecht the Younger and Albert, had a dream. They wanted to enroll themselves in the School of Art at Nuremberg, but they knew it would be impossible knowing their father's financial condition. One night, Albrecht said, "Albert, I have an idea. Let us toss a coin. The one who wins will go to Nuremberg to study art. The one who loses will go to the nearby mines and earn a living and help the other to complete his studies. After 4 years, the other brother can study." Albrecht won the toss and went off to Nuremberg. Albert went down into the dangerous mines and for the next 4 years earned money for his brother's studies. When the young artist returned to his village, Albrecht rose from his chair and announced, "I owe this popularity to my dearest brother. Now it is your turn. Now you can go to Nuremberg to pursue your dreams and I will take care of you." "No, brother, I cannot go to Nuremberg. It is too late for me. Look what 4 years in the mines have done to my hands. I cannot even hold a glass, much less
make delicate lines on a paper or canvas with a pen or a brush. No, brother, it is too late for me. One day, Albrecht Dürer drew his brother's abused hands with palms together and thin fingers stretched skyward. He called his powerful drawing simply Hands. Later, his great masterpiece was renamed The Praying Hands. Okay students, open your book, page number 45, chapter 5. Read this real story about the world famous painting The Praying Hands, made by the famous painter Albrecht Dürer. ये एक रियल स्टोरी है स्टूडेंट्स, एक फेमस पेंटर है, उनकी पेंटिंग का जो नाम है द प्रेइंग हैंड्स, मीन्स प्रार्थना करते हुए हाथ, और जो पेंटर है, जो फेमस पेंटर आर्टिस्ट है, उनका नाम क्या है? अल्ब्रेcht ड्यूरर, जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है. इन द 15th century a goldsmith named Albrecht Dürer the Elder lived in a small village near Nuremberg, a German town. 15th सेंचुरी की बात है. एक गोल्ड स्मिथ ऐसे पर्सन को कहते हैं जो ज्वेलरी बनाते हैं, जिसे हम सुनार बोलते हैं ना, वो क्या नाम है? ड्यूरर, अल्ब्रेcht ड्यूरर उनका नाम है. कहाँ रहते थे वो? न्यूरमबर्ग, जर्मनी का एक टाउन है, उसके पास में एक स्मॉल विलेज है न्यूरमबर्ग, वहाँ पर रहते थे. ही लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड 18 चिल्ड्रन. उनकी एक वाइफ और 18 चिल्ड्रन, 18 बच्चे थे. As the father and the head of the household, and to feed his huge family, he worked almost 18 hours a day. उनके फादर जो है, क्योंकि वो हेड थे, राइट, मिस मुखिया थे अपने घर के, उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी, तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उन्हें कितना उनको दिन में 18 घंटे में 18 आवर्स काम करना पड़ता था. Despite their seemingly hopeless condition, two of Albrecht Dürer children had a dream. उनकी जो ये हालत थी, ऐसी कंडीशन थी, उसके बावजूद भी उनके 2 बच्चे थे जिनके सपने थे. They were अल्बर्ट एंड अल्ब्रेcht. क्या नाम है बच्चों का? अल्बर्ट एंड अल्ब्रेcht. ओके. Both brothers wanted to pursue their dream of becoming artist. दोनों जो भाई है वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे, उनका सपना था आर्टिस्ट बनने का और उसे वो पूरा करना चाहते थे. They wanted to enroll themselves in the school of art at Nuremberg, but they knew it would be impossible knowing their father's financial condition. वो दोनों भाई क्या चाहते थे कि वो जो न्यूरमबर्ग है उसका जो आर्ट स्कूल है, जहाँ पे वो आर्ट मीन्स ड्राइंग पेंटिंग बनाना सीख सकते थे, आर्ट स्कूल है, वो वहाँ पर भर्ती होना चाहते थे. बट वो अपने फादर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, मीन्स आर्थिक जो स्थिति थी उनकी, वो इतने मतलब पैसे नहीं थे उनके पास, तो वो जानते थे कि उनकी जो कंडीशन है फाइनेंशियल वो अच्छी नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल है कि हम आर्ट स्कूल में जा सकते हैं पढ़ने. After many long discussions at night in their crowded bed, the 2 boys came up with a plan. एक दिन वो अपने बेड पर बहुत देर डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं और उनके पास एक प्लान रहता है. One night, Albrecht said, Albert, I have an idea. Let us toss a coin. एक रात अल्ब्रेcht जो है वो अपने भाई अल्बर्ट से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम टॉस करते हैं, मीन्स कॉइन को उछालते. The one who wins will go to Nuremberg to study art. Albert, who understood the plan of action, exclaimed at once, yes, the one who loses will go to the nearby mines and earn a living and help the other to complete his studies. After 4 years the other brother can study. तो जो अल्बर्ट है वो कहता है अल्बर्ट से
कि जो भी जीतेगा वो न्यूरमबर्ग स्टडी करने के लिए जाएगा और जो दूसरा भाई है वो माइंस में जाएगा, मीन्स खदान में काम करने के लिए जाएगा और पैसे कमाएगा और अपने भाई की पढ़ाई में मदद करेगा। और 4 साल के बाद वो वापस आएगा और जो मतलब भाई माइंस में काम कर रहा है, खदान में काम करने गया है, फिर वो वहाँ स्टडी करने जाएगा और दूसरा भाई वहाँ पर काम करेगा और पैसे कमा करके उसकी पढ़ाई में पैसा खर्च करेगा, उसकी हेल्प करेगा फाइनेंशियली। तो ये वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। पेज नंबर 46।